Hello. Hello everyone. Welcome to today's live class. I hope you all are doing fine and also aware of the topic that we are going to discuss in today's lecture. So today's class is going to cater to one of the most important and a highly scoring question of your Pearson test of English. That's your PT Academic. And the question is right from dictation. I would suggest you to keep a pen and your notebook handy so that whatever is more important, just note it down for you to remember. Right from dictation, and it is a question from your listening module. Like I said, it's a question from your listening module, and the name says right from dictation. This question is the very last question of your listening sequence. Listening has a total of 8 questions. Listening has a total of 8 questions, and out of these 8 questions, the last one is your right from dictation. As you can see on the board, right from dictation, right? So as the name suggests, what you have to do? The name says you have to write down. The question is from listening. What you have to write? The thing that you are going to listen, you have to write similar, exactly the same as you hear. You have to listen carefully and I have to write down the answer. So my score is contributed to listening plus writing. So like in the beginning, I told you what makes this question a highly scored question from your exam point of view is it contributes score to listening as well as to writing. So दोनों sections में marks मिलेंगे, listening में भी और writing में भी majority of marks इस question से contribute होते हैं. Right from dictation कितने questions आते हैं? So let's take an overview of it first and then we shall move ahead with a few important techniques और उसके बाद हम कुछ practice भी करके देखेंगे. Score is contributed to listening and writing. So you will have around 3 to 4 questions. 3 to 4 questions means you will have 3 to 4 listenings that you have to write down as you listen. Now, how it is scored? Pearson says it is scored partially. That means partial credit is allotted. What exactly partial credit means? जब score लेना है, तो ये पता होना चाहिए कि scoring कहाँ से सबसे ज़्यादा fetch हो सकती है, कहाँ से सबसे ज़्यादा score हम कर सकते हैं. Important question है बहुत. Partial credit मिलता है. Partial credit का मतलब है कि जो वर्ड हम बिल्कुल सही लिखेंगे, जो उसने बोला और हमने उसको ध्यान से सुन के एग्जैक्टली सही लिखा, उस चीज का हमको कंप्लीट 1 पॉइंट मिलता है. और जो चीज मैंने नहीं सुनी या मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, उस चीज का मुझे 0 मिलता है, यानी कोई पॉइंट नहीं मिलता. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. अगर आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सेंटेंस में किसी वर्ड में डाउट लगता है कि शायद उसने ये बोला है, तो आपने क्या करना है? आपने वो लिख देना है. यू हैव टू टाइप इट डाउन. व्हाई? बिकॉज अगर वो सही हुआ, ऑफ कोर्स यू हैव अ ब्राइट चांस ऑफ स्कोरिंग 1 पॉइंट. अगर गलत हुआ तो यू विल नॉट लूज एनीथिंग. नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, सीधा वो 0 ही रहेगा. सो इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट योर मार्क्स. उसका आपके मार्क्स पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. इसीलिए अगर डाउट हो तो हमेशा लिख देना एक better choice है. Now, before I give you some major ways of doing this question, let's just quickly draw and have a clear idea of how your screen appears on the examination day. Exam में screen दिखती कैसे है? Supposingly this is your computer screen, you will have the instructions here on top of the screen. आपको instructions यहाँ पे ऐसे लिखी होती है.
On this top right corner you will have the timer. ऊपर टाइमर आएगा, बॉटम में आपको नेक्स्ट लिखा होगा. नेक्स्ट मीन्स जैसे ही आपका एक क्वेश्चन खत्म हो गया आपने नेक्स्ट प्रेस कर देना है. यहाँ पे आता है आपका वर्ड काउंट. अब जब मैं सुन रही हूँ तो मैंने इतने ध्यान से सुनना है कि मैंने हर वर्ड जरूर अटेम्प्ट करना है. आप कितने वर्ड्स आपने लिखे वो वर्ड काउंट यहाँ आता रहता है. अगेन यू विल हैव योर कट, कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शंस रिटन ऑन द स्क्रीन. मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक एम्प्टी डायलॉग बॉक्स बन के आएगा. इस बॉक्स में आपने क्या करना है, दिस इज योर स्पेस टू आंसर. इस जगह पे आपने अपना आंसर टाइप करना है और इसके ऊपर आपको रिकॉर्डिंग बार बन के आएगा जहां पे वो जब बोलना शुरू हो जाएगा तो रिकॉर्डिंग स्टेटस प्लेइंग आ जाता है. अब बात करते हैं, ये तो हो गया एग्जाम पे स्क्रीन कैसे लगती है. अब आते हैं हम इस क्वेश्चन में कि क्या इस क्वेश्चन को तैयारी के लिए इंडिविजुअल कोई टाइम मिलता है. बच्चे आपका एक राइट फ्रॉम डिक्टेशन प्ले होने से पहले रफली 7 सेकेंड्स का आपके पास टाइमर होता है. बैक काउंटिंग शुरू होती है, राइट. 7 6 5 4 3 2 1 और 1 के बाद जैसे ही 1 ओवर होता है वो लिसनिंग प्ले कर देते हैं. सो दैट मींस दैट इज द टाइम वेयर यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. इन दो 7 सेकेंड्स all you can do is to take a deep breath and relax. आप उन 7 seconds में कुछ और कर तो सकते नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं कि डिक्टेशन क्या आने वाली है. All you can do is and you have to do is keep your mind calm, take a deep breath and be attentive to listen very very carefully. एक बार listening play हुई, हमने उसके साथ साथ ही अपने notes बनाने हैं. अब बच्चे एक पर्सनल सजेशन है कि जिन बच्चों की टाइपिंग बहुत फास्ट नहीं है वो अपने नोट्स टाइप करते हुए नहीं बनाएंगे, यानी कि वो सीधा इस बॉक्स में टाइपिंग करके अपने नोट्स नहीं बनाएंगे. वो क्या करेंगे, एग्जाम में ऑल्सो यू विल हैव अ मार्कर एंड यू विल बी गिवन इरेजेबल नोटपैड. आपको शीट्स और मार्कर प्रोवाइडेड होगा, आपने वहां पे अपने नोट्स बनाने हैं. अब नोट मेकिंग का ये मतलब नहीं है कि मैं एक एक वर्ड पूरा पूरा लिखूं, बिकॉज इफ आई गो ऑन राइटिंग ईच वर्ड कंप्लीटली उस हिसाब से तो वो बोल के खत्म भी हो जाएंगे, मैं नोट्स बनाती ही रह जाऊंगी. सो मैंने फोकस करना है मेन वर्ड्स पे एंड ऑल्सो आई हैव टू फोकस ऑन द एब्रीविएशंस. आई विल टेल यू हाउ. एब्रीविएशंस होते क्या हैं? Now for abbreviations, just a second. Let me just connect back to the class. Yes. So abbreviations क्या होते हैं? अगर कुछ बच्चों को तो there are two methods exactly. आपको जो आसान लगे आप प्रैक्टिस करके देखिए 5, 10, 15 sentences, whichever way you find easier for yourself, you adopt that manner. कुछ बच्चे हर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे को सेंटेंस आया, रिमेंबर टू साइन द अटेंडेंस रजिस्टर बिफोर लीविंग द हॉल. रिमेंबर टू साइन द अटेंडेंस रजिस्टर बिफोर लीविंग द हॉल. Now some students they like to make notes like this. This is R. Let me just darken this up a bit. लेकिन कुछ बच्चे इस तरीके से बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते ही रह जाते हैं कि कौन सा वर्ड था कौन सा नहीं. और सेकंड डिफिकल्टी जो इस मेथड से बहुत बच्चों को आती है, फर्स्ट इनिशियल्स लिखने से आती है, बाद में खुद ही भूल जाते हैं कि इनकी फुल फॉर्म्स थी क्या. ऑलवेज ट्राई टू लिसन केयरफुली, सेंटेंस को साथ साथ समझो और उसको हमेशा चंक्स में यानी कि मीनिंगफुल ग्रुप्स में याद रखने की कोशिश करें. फॉर एग्जाम्पल, Remember to sign the attendance register before leaving the hall. अब जिस बच्चे को इनिशियल से मुश्किल लगता है वो remember sign attendance register hall ऐसे लिख सकता है. अब मैंने इस सेंटेंस में क्या किया, मैंने हर वर्ड नहीं लिखा, मैंने सिर्फ कुछ कीवर्ड्स नोट डाउन करे, मीनिंगफुल वर्ड्स नोट डाउन करे और कंटेंट वर्ड्स छोड़ दिए. कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं, जो भी आपके ग्रामर वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट फॉर्म देने में हेल्प करते हैं, लाइक योर आर्टिकल्स, लाइक योर प्रेपोजिशंस, दीज आर ऑल योर ग्रामर वर्ड्स. सो मैंने मेन वर्ड लिख लिए.
अब जब मैं अपने आंसर को कंप्लीट करने लगूंगी उस टाइम पे आई हैव टू यूज माय प्रेजेंट नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड आल्सो माय मेमोरी। जो मैंने सुना था मुझे अपनी मेमोरी पे भी रिलाय करना पड़ेगा। रिमेंबर साइन अटेंडेंस। अब मेरे को यहाँ पता है कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन इट, सो अ preposition, so my sentence becomes remember to sign। यहाँ पे आर्टिकल मिसिंग है, क्या साइन करना है? अटेंडेंस, रजिस्टर। अब मैंने यहाँ वर्ड लिखा है हॉल, इतना तो मैं मेमोरी पे रिलाई कर सकती हूँ कि हॉल पे जाने से, हॉल से बाहर जाने से पहले हमने अटेंडेंस रजिस्टर साइन करने हैं। सो रिमेंबर टू साइन द अटेंडेंस रजिस्टर बिफोर लीविंग। अब अगेन आर्टिकल आएगा क्योंकि एक स्पेसिफिक हॉल की बात कर रहे हैं तो वहां पे द आर्टिकल ऐड हो जाएगा। सो मेरा सेंटेंस बन जाएगा रिमेंबर टू साइन द अटेंडेंस रजिस्टर बिफोर लीविंग द हॉल। Now these are 10 individual words. वर्स कम वर्स किसी बच्चे को डिफिकल्ट लगेगा 10 के 10 रिप्रोड्यूस करना। हर एक वर्ड जो आप सही सुन के एग्जैक्टली सिमिलर लिखोगे और स्पेलिंग्स ठीक लिखोगे आपके लिए, आपको उसके लिए पॉइंट्स मिलते जाएंगे। लेकिन अगर आपने स्पेलिंग गलत लिखा तो उसका स्कोर आपको नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी केयरफुल कि आप जो लिख रहे हो वो वर्ड भी वही हो जो आपको सुनाई दिया है, प्लस उसके स्पेलिंग भी करेक्ट हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे कि पीटी की जो स्कोरिंग है उसमें उन्होंने कहीं पे भी कोई क्लैरिटी इस बारे में नहीं दी कि क्या सीक्वेंस के भी कोई मार्क्स हैं। They have not given any clarifications about it. So we assume कि बाय चांस अगर आपको कोई वर्ड की सीक्वेंस आगे पीछे भी हो गई है लेकिन वर्ड ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, देन यू माइट फेच मार्क्स, आपको मार्क्स मिल सकते हैं। इसीलिए अगर सीक्वेंस थोड़ी बहुत आगे पीछे हो भी जाए तो जो सुनाई दिया है प्लीज राइट दैट डाउन, उसको छोड़ के नहीं आएंगे, उसको अटेम्प्ट जरूर करेंगे ताकि आपको स्कोर मिल सके। पहली चीज हमने देखी कि हमने क्या करना है, हमने लिसनिंग करते करते अपने नोट्स बनाने हैं और जिनकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है वो नोट्स अपने रफ शीट्स जो आपको एग्जाम में मिलेंगी वहीं पे बनाएंगे। नोट्स बनाते हुए एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि आप पूरा पूरा वर्ड ना लिखें और बाय चांस नोट्स बनाते हुए कोई स्पेलिंग गलत हो गए तो वहां पे स्पेलिंग ठीक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उसी टाइम पे बच्चे स्पेलिंग ठीक करने पे लगोगे तो तब तक आगे का वो सारा बोल देगा और आपका पूरा का पूरा सेंटेंस मिस हो जाएगा। So what you have to do is you have to make your notes, but you have to make them very smartly. Focus on abbreviations, short forms, या फिर first alphabet of each word, दोनों में से जो आपको आसान लगे। But majority of students find this easier because इस मेन वर्ड से आपको वर्ड नहीं भूलता कि आपने लिखा क्या था। यहाँ पे कई बार बच्चा यही भूल जाता है कि ये क्या स्टैंड करता है, RTSTARBL, ये किस चीज के लिए लिखा गया था, बच्चा यही भूल जाता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपने ऐसे, अगर आपको नहीं याद रहता तो आप ये भी तरीका अपनाएं कि शॉर्ट फॉर्म्स लिखें और मेन वर्ड लिखें। द, एट, बिफोर, आफ्टर, आर्टिकल्स, आपके प्रेपोजिशंस को आप सही से लिखोगे, टाइपिंग बॉक्स में टाइप करोगे तब आपको इतना ध्यान आ ही जाएगा कि यहाँ पे आर्टिकल मिसिंग है। आई होप दिस मच इज क्लियर। चंक्स बना के सेंटेंस को लिखने की कोशिश करें। चंक्स की बात करें तो चंक्स होते क्या है? मीनिंगफुल फ्रेजेस। अब मेरे को इस पहले फ्रेज में ये मीनिंगफुल वर्ड लगा, साइन लगा, अटेंडेंस लगा, रजिस्टर अगेन, हॉल। ये मेरे हिसाब से इसमें 5 वर्ड्स ऐसे हैं जो याद रखने से मुझे मीनिंग क्लियर हो जाएगा। सो मैंने जब सेंटेंस सुना मैंने उसको छोटे छोटे हिस्सों में नोट्स बनाने में लिख लिया। तो मैंने लिख लिया रिमेंबर साइन अटेंडेंस रजिस्टर हॉल, कि इसी बारे में बात कर रहा है कि आपने याद रखना है कि आपने साइन करना है अटेंडेंस रजिस्टर हॉल से बाहर जाने से पहले। सो इस तरीके से अगर हम चंकिंग करेंगे तो चंक करने से आपकी स्कोरिंग आराम से अच्छे से ज्यादा अच्छे से हो जाती है अटेम्प्ट। क्यों? क्योंकि याद रखने की इससे कैपेसिटी बढ़ जाती है।
तो हमने मीनिंगफुल वर्ड्स ध्यान में रखने हैं, आर्टिकल्स प्रेपोजिशंस को यानी कि ग्रामर वर्ड्स को आप थोड़ी टाइम फॉर द टाइम बिंग इग्नोर कर सकते हो। जब आंसर टाइप कर रहे हैं तब सेंटेंस को ध्यान से कंप्लीट कर लेना है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पीटी की स्कोरिंग में, स्कोर गाइड में कहीं पे सीक्वेंस के बारे में कोई बात नहीं की गई है। सो हो सकता है अगर मैं बाय चांस रिमेंबर में लास्ट में भी लिख दूं तो भी मुझे उसका पॉइंट मिल जाए, क्योंकि सीक्वेंस की नेसेसिटी उन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं की है। Yes, now a few things that you need to keep in mind. जब हम तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए तो कुछ चीजें हैं जो मैंने ध्यान रखनी है कि क्या मैंने करनी है और क्या मैंने बिल्कुल ही नहीं करनी। Approximately 5 minutes you have to leave for your write from dictation. Okay. So I would not say leave, I would say save at least 5 minutes out of your total listening time. I hope आपको इतना पता होगा कि listening में summarize spoken text 10 minutes ईच आता है, उसके बाद total timer चलता है। So अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि last question तक आते आते time नहीं बचा पाते। Now when I know that this question is very important for my final scores, एंड माइंडेड, अगर आप एक राइट फ्रॉम डिक्टेशन मिस कर देते हो आप 79 प्लस का टारगेट उसी टाइम मिस कर देंगे। अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा मिस कर दी 65 प्लस भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है स्कोर करना। सो दिस इज द काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस दिस क्वेश्चन कीप्स। सो कम से कम 5 मिनट लास्ट के आपने सेव करने ही करने हैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन के लिए, क्योंकि हमको नहीं पता किसी बच्चे को 3 राइट फ्रॉम डिक्टेशन आएगी, किसी को 4 भी आ सकती है। So be extra vigilant, be extra careful while managing your time. Second thing that you have to keep in mind is do not misspell any word. स्पेलिंग्स का एक्स्ट्रा ध्यान दो, क्योंकि अगर आपने वर्ड सही सुना भी है तो भी फायदा कुछ नहीं होगा अगर जल्दी जल्दी में स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं। तो अगर स्पेलिंग गलत है तो वर्ड गलत ही माना जाता है, इसलिए स्पेलिंग्स पे आपने ध्यान देना है। एक बार जब आप टाइपिंग बॉक्स में अपना पूरा सेंटेंस टाइप कर लेंगे उसके बाद एक एक वर्ड उसके स्पेलिंग्स के साथ जरूर चेक करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट स्किप वर्ड्स। कोशिश करो कि कुछ स्किप ना हो, सारा कुछ ध्यान से सुन के नोट्स बना ले ताकि कहीं भी कुछ भी मिस ना करें। थर्ड थिंग इज डू नॉट रिप्लेस वर्ड्स। रिप्लेस करना क्या होता है कि मैंने मॉर्निंग बोला आपने आफ्टरनून लिख दिया उसकी जगह। यस, सो मॉर्निंग की जगह आफ्टरनून, आफ्टरनून की जगह मॉर्निंग, इसके पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अगर मॉर्निंग बोला गया है तो मॉर्निंग के ही पॉइंट्स मिलेंगे, आफ्टरनून बोला गया है तो आफ्टरनून के ही पॉइंट्स मिलेंगे, एंड ऑफ कोर्स ओनली इफ योर स्पेलिंग्स आर करेक्ट। One another very important thing is be careful of S, ES, ED, D sounds. अक्सर बच्चे गलती करते हैं, मॉर्निंग्स बोल दिया गया है, बच्चा सुनते हुए ध्यान नहीं देता और उसको मॉर्निंग लिखाता है, तो भी इसका कोई पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। एक आसान तरीका है, अगर किसी वर्ड में एस दिया गया है, सपोज करो हम पहले वाला ही सेंटेंस लेके चलते हैं जो सेंटेंस था रिमेंबर टू साइन द अटेंडेंस रजिस्टर बिफोर लीविंग द हॉल। अगर इस सेंटेंस में कहीं पे एस होता, आई अस्यूम कि चलो हॉल्स था, बिफोर लीविंग द हॉल्स, तो मैंने एस डाल दिया ताकि जब मैं अपना आंसर टाइप कर रही हूँ ना तो मुझे ये याद रहे। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया रजिस्टर्स था, एस कर दिया, तो मुझे इतना तो याद रहेगा कि मैंने ये एस किसी वजह से लिखा होगा, बिना वजह के तो आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। बी केयरफुल कि आप अपने याद रखने के लिए ऐसे साइड पे एस या डी या ईडी डाल दें ताकि आपको याद रहे इस वर्ड के साथ ईडी की साउंड आई थी, इस वर्ड के साथ एस की साउंड आई थी, और जब आप टाइप करेंगे तो आपने इसको यूज जरूर करना है। नाउ मूविंग अहेड,
I hope this much is clear now, that this is an important question. Scores contributed to listening as well as writing. Be careful about the spellings. कोशिश करो कि सीक्वेंस मेंटेन रहे, लेकिन अगर मेंटेन नहीं भी रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्कोरिंग में सीक्वेंस की क्लैरिटी नहीं दी हुई है. SESDED साउंड्स पे ध्यान दें. नेक्स्ट थिंग इज कि सफिशिएंट टाइम इसके लिए सेव करके रखें, एटलीस्ट 5 मिनट्स, क्योंकि आपको लिसनिंग करके अपने नोट्स बना के नोट्स को फाइनल टाइप करके चेक करने में भी टाइम जरूर लगेगा. बिफोर वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, 3-4 प्रैक्टिस करके देखते हैं. यू विल लेट मी नो योर आंसर्स इन द कमेंट्स and I will play the audios for you. But before we do that, let me give you snapshot, a summary of what exactly you have to do. So what exactly you have to do is you have to listen. You have to listen very, very carefully. You have to write down. You have to make your notes and write down your answer. And you have to review. This is most important. हम लिख देते हैं, लेकिन कई बार जल्दी जल्दी में स्पेलिंग्स दिमाग में नहीं आया या टाइपिंग एरर हो गया और गलत हो जाता है. बिना रिव्यू के प्लीज नेक्स्ट प्रेस ना करें, और उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है. बच्चे ये सब हम तभी कर पाएंगे जब हमने सफिशिएंट टाइम सेव करके रखा होगा इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, बिकॉज इट इज हाईली scoring from your examination point of view, and everybody's target is to score well. Now I am going to play a few listenings one by one, and what you have to do is you have to listen carefully, keep your notebook ready, and then you will give me your answers in the comment box. Just give me a second by the time I get to the playlist. Yes. So what I'm going to do is I'm going to play something for you. आपने ध्यान से attentively सुनना है और मुझे comments में अपने answers फटाफट से बताने हैं. The article covers interesting experience. I hope you could hear this. I hope आपको सुनाई दिया है, क्योंकि एग्जाम में जितनी भी स्पीड हो आपको हर चीज सिर्फ एक ही बार सुनाई देगी. There is no possibility कि आप एक सेंटेंस दोबारा सुन पाए. Okay, so here now what I'm going to do today is, okay, just pause for a second. Let me put the exhaust off, and so that we can listen carefully. All right, I'm sure it's much more peaceful now, but in the exam also, beta, you have to be familiar and used to such sounds coming in the class, क्योंकि जब आप एग्जाम दे रहे हो तो सिर्फ आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, उस टाइम पे आपके इधर उधर सब साइड्स पे और बच्चे अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे. सो जब भी प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के साथ भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में ऐसा ही होने वाला है. Now listen carefully, okay? So at the count of 3, I'm going to play 1, 2, and 3. The article covers interesting experience. Now what I could hear was a few important keywords. I hope आप में से किसी ने सुना हो. The article, okay. All right, आगे का clear नहीं है. बच्चे अब देखो, आपने द ठीक लिखा, लेकिन आर्टिकल की स्पेलिंग देखो. वर्ड सही सुना, लेकिन आर्टिकल के स्पेलिंग, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स पे मैं देख पा रही हूँ आर्टिकल के स्पेलिंग एरर कर दिए हैं. तो वर्ड सही सुनने का भी फायदा नहीं होगा अगर आप स्पेलिंग की गलती कर देंगे. तो स्पेलिंग गलत है तो स्कोर नहीं मिलेगा. दिस बिल्कुल जी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. ओके,
So the sentence was, the article covers interesting experience. The article covers interesting experience. The article experience is interesting. Okay, Ashwini, a decent, good attempt. Good. Now I'm going to play the next one. Be careful now. I will just play the second audio for you. Read the first section before the next meeting. Come up with your answers hurriedly. Come up with your answers. Okay, before the next mirror. It's not exactly mirror, it's meeting beta. Get familiar with the pronunciations. बार बार सुनो चीजों को. Try to watch English episodes, try to watch English movies, watch BBC, so that आपको foreign accent pronunciations की familiarity हो जाए. Okay, read the. अब देखो, read the first section लिख दिया है first को. वर्ड सही सुना, स्पेलिंग एरर कर दिए, मार्क नहीं मिलेगा. द सेंटेंस वाज, रीड द फर्स्ट सेक्शन बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग. रीड द फर्स्ट सेक्शन बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग. चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस करके देखते हैं एक और. This is an integrated course with several elements. Yes, your answers. जितना भी सुना है, जिस भी सीक्वेंस में सुना है, जस्ट टाइप इट डाउन. This is okay. First three. This is a great नहीं था. This is ठीक है. This is an integrated course with several elements. Very good, very good. Absolutely correct, Ashwini. This is integrated. 3 words ठीक है. This is an integrated course. And several नहीं था, with several elements. So जो sentence बोला गया था वो था, this is an integrated course with several elements. एक और try करते हैं before we wind up today's lecture. The last one for the day. Convincing evidence for this theory is hard to obtain. Yes, your answers, please. Play again. I can't play it again. Exam में किसको बोलोगे play again? Course, several, video, evidence is hard to obtain. Okay, good. But evidence के spelling ध्यान दीजिएगा. Evidence, EVIDENCE, evidence. Evidence for this theory is hard to obtain. Okay. The first word was convincing. Convincing evidence for this theory is hard to obtain. Convincing evidence for this theory is hard to obtain. चलिए, I'm sure आप लोगों को इससे help होगी. All you have to keep in mind for your write from dictation is कि बहुत ज़्यादा scoring question है. कम से कम 5 minutes save करके रखें. Listening और writing दोनों में ये contribute करता है score. और जब भी type करें, spellings please check कर लें. अगर doubt हो कि obtain था या obtains था, write both, क्योंकि negative marking तो है ही नहीं. So जो लिखा होगा वो ठीक होगा, उसका पॉइंट मिल जाएगा. जो नहीं ठीक होगा उसके लिए आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा. कोई पूरा इम्पैक्ट आपके स्कोर पे नहीं आएगा. एब्रीविएशंस बनाते हुए ध्यान रखें, अगर फर्स्ट अल्फाबेट में कंफ्यूजन हो जाती है या याद ही नहीं रहता बाद में कि फर्स्ट अल्फाबेट किस चीज के लिए लिखा था, तो शॉर्ट एब्रीविएशंस बनाएं और इंपॉर्टेंट वर्ड्स की ही एब्रीविएशंस बनाएं. आई विश यू ऑल द गुड लक. कीप प्रैक्टिसिंग. In case anyone wants to ask any specific question about today's topic, then please ask right away. अभी पूछ लीजिए अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो. Is there any question? I hope I have tried to rather answer all of your queries.
Still, in case anyone has any query, then let me know in the comment section, or you can refer to our Instagram and YouTube for other clarification videos on PT. We keep on posting all the latest material, the templates, everything. So do watch that, and I'm sure I have helped you in some way or the other. All the very best to you. Thank you very much.